Hello students, in previous video we have started unit 13, that is volume. So we have learned that the measure of space a solid occupies is called the volume of the solid. That means कि जो solid है वो कितना space occupy करता है, that is its volume. And we have done worksheet number 1 in which we have compared the volume of different solids. And now today we will learn more about volume. Now measurement of volume, how we measure the volumes. Now let us understand. Anil wants to find the volume of his pencil box. So Anil has a pencil box and he wants to find the volume of his pencil box, कि उसके pencil box का कितना volume है. Now look, he has filled his pencil box with marbles to find its volume. So उसने क्या किया, अपने pencil box में marbles fill कर लिए to find its volume. Now I have used 40 marbles, so he used 40 marbles. Now volume of the pencil box is equal to 40 marbles. So is it accurate? You can see here there is a left out space between the marbles. जब हम suppose marbles हम fill करते हैं, so what will happen? You can see here हम marbles अगर ऐसे करके इसमें fill कर रहे हैं like this. Now you can see here there is a space left between. You can see here this is a space left. यहाँ पर खाली space बच जाता है. So this is not the accurate. So the volume of 40 marbles is not accurate because left out space is there. उसने पूरा space cover नहीं किया है. So इससे हमें exact volume नहीं पता चलता है. We need an accurate unit for measuring volume. So do you remember me? What is this? We have learned in class 3rd also. What is this solid shape? This is a cube. So what is a cube? ये बॉक्स है जिसकी सारी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है. क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है. इट इज अ सॉलिड शेप. So this is a cube and let us fit cubes into the pencil box to find its volume. Now यहाँ पर क्या fill कर दिए, cubes fill किए. Now you can see here that there is no space left. कोई भी space, बिल्कुल भी space नहीं बचा है. जैसा यहाँ पर marbles fill करने से space बच रहा था, वैसा कोई भी space यहाँ पर नहीं बचा है. So I have used 16 cubes to fill the pencil box and no space is left between the cubes. तो कोई भी space नहीं बचा है. So we choose a cube as the best unit for measuring volume. So volume को measure करने के लिए best unit क्या है हमारी, cube. And in previous unit we have learned the best unit to measure the area is square units, right? और यहां पर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे, क्यूब. वहां पर स्क्वायर यूज कर रहे थे, यहां पर हम क्यूब यूज करेंगे बिकॉज जो एरिया निकल रहा है वो हमारा प्लेन सरफेसेस का निकलता है और यहां पर जो हमारा वॉल्यूम है ये सॉलिड शेप्स का होता है. सो वी यूज और वी चूज अ क्यूब एज द बेस्ट यूनिट. सो अ क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम. सो अब हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए, क्यूब. नाउ लेट अस मेजर द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज क्यूब्स. सो सेम इस टाइप का ही हमने पिछले यूनिट में किया था. वहां पर जब हम एरिया निकाल रहे थे तो हम क्या यूज कर रहे थे, स्क्वायर्स, राइट. यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, स्क्वायर्स, क्योंकि जो एरिया की यूनिट हम कौन सी बेस्ट यूनिट थी हमारी, स्क्वायर्स. बट वॉल्यूम के लिए हमारी बेस्ट यूनिट क्या है, दैट इज क्यूब्स.
वॉल्यूम को मेजर करने के लिए बेस्ट यूनिट है क्यूब्स. नाउ यू कैन सी हियर its volume is 3 cubes. 1, 2 and 3. 3 cubes are there. यहाँ पर कितने cubes हैं? Let us count the number of cubes. 1, this is 1 cube, 2 cube, right? 3 cube, 4 cube. और ऐसे ही पीछे भी है 5, 6 और नीचे 7 और इसके पीछे भी एक 8. So there are 8 cubes. And in this figure, how many cubes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cubes are there. So, cube is the best unit. Now we have worksheet number 2 based on it. So here we have to find the volume of the following solids in terms of the unit of volume, that is cubes. So unit of volume क्या है? Cubes है और हमें इन figures का, इन solid shapes का क्या निकालना है? Volume निकालना है. So let us count the number of cubes. So how many cubes are there? 2 cubes. So its volume is 2 cubes. Right? Now here find out the volume of this solid shape. How many cubes are there? 1, 2, 3 and 4, 5, 6. So its volume is 6 cubes. 6 cubes. Right? Now the next one. Let us count the number of cubes in this solid shape. So count the number of cubes. यहाँ पर कितनी लाइन्स है हमारी? 2 लाइन्स है. 1 फ्रंट में है और 1 उसके बैक साइड में. राइट? सो जितने हमारे आगे होंगे फ्रंट साइड को हमारे जितने क्यूब्स होंगे उतने ही क्यूब्स हमारे सेकंड लाइन में भी होंगे. जो बैक साइड को है वो भी उतने ही नंबर ऑफ क्यूब्स है. यहाँ पर आपको सारे क्यूब्स नहीं दिखेंगे बिकॉज इट इज अ सॉलिड शेप और सॉलिड शेप को हम इट इज नॉट इजी टू ड्रॉ. हम एग्जैक्टली उसको ड्रॉ नहीं कर सकते. हमें यहाँ पर इमेजिन करना होगा, आइडिया लगाना होगा कि हमारे पास कितने क्यूब्स हैं. जितने हमें आगे दिख रहे हैं उतने ही हमारे इसके पीछे भी होंगे. सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फ्रंट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 9 क्यूब्स आर देयर और 9 क्यूब्स ही हमारे बैक साइड में भी होंगे. सो 9 plus 9 is 18 cubes. So what is the volume of this solid shape? That is 18 cubes. Right? Similarly, let us count here. यहाँ पर आपके कितनी रोज है हमारी? कितनी? 1 फ्रंट में है, एक सेंटर में है और एक बैक साइड में है. फ्रंट में जितने भी क्यूब दिख रहे हैं उतने ही क्यूब्स उस सेकंड रो में है और उतने ही क्यूब्स थर्ड रो में है. सो अब हमें क्या करना है? हम फ्रंट वाले रो के काउंट करेंगे और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 3 रोज है यहाँ पर हमारी नंबर क्यूब्स की. सो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 3 बार प्लस करेंगे. जितने भी क्यूब्स है फर्स्ट रो में उतने ही सेकंड में है उतने ही थर्ड रो में. सो आइदर यू मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 बार उसको ऐड कर लीजिए 3. सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फ्रंट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 cubes are there. ऐसे ही 15 cubes second row में और ऐसे ही third row में 15. So 15 threes are 45 cubes. So how many cubes are there? 45 cubes. So what is its volume? 45 cubes. So in this way we can find out the volume by counting the number of cubes. Now the next one is which of the following is the unit to measure volume? So volume को measure करने के लिए out of these three which one is the best unit? और you can say कि unit कौन सी है. अब यहाँ पर सेंटीमीटर, एक स्ट्रेट लाइन तो सेंटीमीटर्स में हम नहीं मेजर करते जैसे हम पेरीमीटर करते हैं. नेक्स्ट स्क्वायर
स्क्वायर यूनिट्स हम यूज करते हैं? नो. टू मेजर द वॉल्यूम, which unit we use? We use cube. So this is the correct option. So हम सेंटीमीटर में भी नहीं लेंगे, जैसे हमारी लेंथ होती है, लेंथ में भी नहीं लेंगे, हम स्क्वायर में भी नहीं लेंगे. हम किस में लेंगे? यूनिट वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम को कौन सी यूनिट मेजर करेंगे, किस यूनिट से मेजर करेंगे? दैट इज क्यूब. So now I hope it is clear that cube is the best unit to measure the volume. And now the units of volume. So you can see here, in order to find the volume of this box, you can see here there is a box. Let us use cubes with each edge equal to 1 centimeter. अब हम क्या करेंगे? क्यूब लेंगे जिसकी एज कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर, सो 1 1 1 जितने भी, बिकॉज क्यूब्स के सारे एजेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं लेंथ में. सो इसके सारे जो एजेस हैं वो 1 सेंटीमीटर के होंगे. सो वी नीड 3 क्यूब्स. ईच एज ऑफ द क्यूब will be 1 centimeter. So 1 centimeter, 3 क्यूब से ये पूरा फिल हो गया. So what is its volume? That is 3 क्यूब सेंटीमीटर. यहां पर हम क्या कर रहे थे? सिंपल क्यूब्स काउंट कर रहे थे. यहां पर हमारे पास यूनिट नहीं थी, सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, ऐसा कुछ भी हमारी यूनिट्स गिवन नहीं थी. हम नॉर्मली क्यूब्स में मेजर कर रहे थे. नाउ जब हम क्वेश्चंस करेंगे, देयर विल बी द यूनिट्स होगी हमारे पास. मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, एंड मिलीमीटर भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वॉल्यूम की जो हमारी यूनिट्स होगी वो हम वैसे ही लिखेंगे. तो यहां पर इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो गया? बिकॉज 3 क्यूब्स आर यूज्ड, सो 3 क्यूबिक सेंटीमीटर. द वॉल्यूम इज 3 क्यूबिक सेंटीमीटर. जैसा हम एरिया में कर रहे थे, वहां पर जो भी हमारे पास आ रहा था, सपोज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर मिलीमीटर, 4 स्क्वायर मीटर. एरिया में हम ऐसा कर रहे थे. सिमिलरली वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्यूब. सो क्यूबिक यूनिट. सो क्यूबिक को हम कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में CU एंड सेंटीमीटर, और स्क्वायर यूनिट्स को SQ डॉट सेंटीमीटर. राइट. सो ये आपको लर्न करनी है कि कहां पर कौन सी यूनिट यूज करनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको वॉल्यूम निकालने को भी आएगा, एरिया निकालने को भी आ सकता है, पेरीमीटर निकालने को भी आ सकता है. यू नो द फॉर्मूलेज, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे. बट जब आप यूनिट्स लिखेंगे तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. आपने कौन सी यूनिट यूज करनी है, एरिया के लिए कौन सी यूनिट यूज करनी है, वॉल्यूम के लिए कौन सी यूनिट यूज करनी है, एंड पेरीमीटर के लिए कौन सी यूनिट यूज करनी है. नाउ द यूनिट्स यूज टू मेजर वॉल्यूम आर क्यूबिक मिलीमीटर, cubic centimeter, cubic meter. So that depends upon the sides of the given solid. जो उसकी एजेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है और मीटर्स में है. और इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे? क्यूबिक को हम शॉर्ट में लिखेंगे CU डॉट. राइट. उसके बाद तो आपको पता है मिलीमीटर MM, सेंटीमीटर CM and meters M. So these are the units of volume, and in next video we will learn about the volume of a cube and a cuboid, that how can we find or measure the volume of cube and a cuboid. Thank you.